Dear student, welcome to my YouTube channel Deep Classes of Physics, and today we are going to do the quick recap of the chapter Motion, class 9th. Now this is the part 3 of the quick recap. Now in today's lecture we are going to discuss some important graphs and their importance. Now the first graph, it is the distance time graph. Now distance time graph for uniform motion is a straight line. First of all, keep in mind what is the shape of distance time graph for uniform motion. It is a straight line inclined towards time axis. Inclined. It is parallel. Now this is inclined towards time axis. Okay. Now in this graph you are seeing there are two graphs. One is for body A and the second is for body B. Now what is the importance of this graph? Distance time graph का फायदा क्या है? Distance time graph से जो उसका स्लोप है वो स्लोप हमें स्पीड के बारे में बताता है. Distance time graph slope gives us the idea of the speed. Okay, now there are two graphs, one is A, now one another is B. Now slope is more for graph A. जितना एंगल ज्यादा होगा 60 डिग्री उतना स्लोप ज्यादा होगा. Now its slope is 0. Now इसका स्लोप आ गया. Now slope is going on increasing and increasing. Okay. Now graph A have more slope. It means the body A is moving with greater speed than the body B. क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया होगा, उसमें दो ग्राफ तीन ग्राफ भी हो सकते हैं. आपको बताना होगा कि किस बॉडी की स्पीड सबसे ज्यादा है. उसकी स्पीड ज्यादा होगी जिसका स्लोप ज्यादा होगा. नाउ स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी. ओके. नाउ द सेकंड इज अगेन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, बट द ग्राफ इज नाउ parallel to time axis. It means there is no change in position. When the graph is parallel to time axis, it means no change in position. If it is 25 km from point O, it always remain at 25. It means body is at rest. What is the shape of distance time graph for body which is at rest? It is a straight line parallel to the time axis. Now these two are the distance time graph. Okay. Now come to speed time graph. Speed time graph, or it may be velocity time graph. Now if the motion is uniform motion means velocity remains same, speed remains same. If it is 10 meter per second, then it will always remain 10 meter per second. It means no change in speed or velocity. If it is 10 meter per second, then at every time the speed will remain same and the shape of the graph is a straight line parallel to the time axis. इसको कंफ्यूज नहीं करना. ये भी देखो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, बट इट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो बॉडी रेस्ट में है. नाउ इट इज स्पीड टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, नो चेंज इन वेलोसिटी. ओके. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्राफ? इस ग्राफ का फायदा क्या है? इस ग्राफ के अंडर ये जो एरिया मैंने जो शेडेड किया देखो, दैट एरिया, it gives us, this area gives us the idea about the distance covered or the displacement covered. It means what is the importance of speed time graph for uniform motion, or you can say what is the importance of velocity time graph for uniform motion. इसका क्या फायदा है? इसका एरिया हमें
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे जानकारी देता है। और इसका क्या फायदा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है हमें स्पीड के बारे में बताएगा। ओके, यहां डिस्टेंस और टाइम है तो स्पीड निकलेगी, जहां स्पीड और टाइम है तो इसमें डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट ग्राफ। नाउ इट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। It is velocity time graph. It is again velocity time graph, but this is the uniform motion. Now this is for uniform accelerated motion. It is for uniform accelerated motion. Uniform acceleration जो है उसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा, बट इट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द टाइम एक्सिस। ओके, इसका स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड बताता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है उससे हम एक्सेलरेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड। नाउ इट इज अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, but it is a curve. If it is a curve, it represents non-uniform accelerated motion. It represents non-uniform accelerated motion and slope is different at different point. हर पॉइंट पर स्लोप देखो डिफरेंट आएगा, कहीं पर स्लोप ज्यादा है, कहीं पर स्लोप कम है। इससे एक्सेलरेशन जो है हर एक पॉइंट पर वो डिफरेंट होगी। आई थिंक यू गॉट ऑल दीज ग्राफ। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। Now first question is, what remain constant in uniform circular motion? Uniform circular motion में कौन सी चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है? स्पीड। Always keep in mind, in circular motion speed remains constant. In circular motion speed remain constant, but what changes in circular motion? Direction of motion changes in circular motion. Velocity is changing in circular motion. ये ऑलरेडी मैंने पार्ट 2 में डिस्कस किया है। सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रहती है, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होती है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है। सर्कुलर मोशन जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है सही है कि गलत। अर्थ मूव्स अराउंड द सन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जो अर्थ है सन के अराउंड मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब अर्थ सन के अराउंड मूव करेगी ये तो सर्कुलर मोशन हुई, एंड सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। एंड क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, इट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वेलोसिटी लगातार जो है वो चेंज होती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, अ बॉडी गोज अराउंड द सन विद कांस्टेंट स्पीड। एक बॉडी सन के अराउंड मूव कर रही है, जैसे प्लैनेट मूव कर रहा है। नाउ इज इट मोशन यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड? प्लैनेट जो है सन के अराउंड मूव कर रहा है, उसकी मोशन यूनिफॉर्म होएगी कि एक्सेलरेटेड होएगी? हमको पता है कि जो भी बॉडी सन के अराउंड मूव करेगी वो सर्कुलर मोशन है, एंड सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन होती है। नाउ व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ? ये जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जहां डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, नाउ इस ग्राफ से हमें क्या पता लगता है? इसका स्लोप जो है हमें स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जानकारी देता है। नाउ स्लोप इज कांस्टेंट। ये देखो, अगर एक ही हम लेते हैं, इसका स्लोप हर टाइम में सेम है, इट मींस इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ द ग्राफ इज लाइक दैट देन स्लोप यहां पर देखो ऐसे होगा, इस पॉइंट पर स्लोप ऐसे होगा, देन इट रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
अगर स्ट्रेट आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट, स्लोप हर टाइम पर सेम है, इट रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नेम द क्वांटिटी which is measured by the area under the velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो क्या मेजर करता है? मैंने अभी बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है इट गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एरिया वो डिस्टेंस बताएगा. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है इट गिव्स अस द नॉलेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. नाउ what does the slope of speed time graph represent? हाँ जी, speed it means velocity, here can be speed. हाँ जी, slope of speed time graph it gives us the acceleration. What does the speed time graph slope represents? It gives us the acceleration. This is the uniform acceleration. If the graph is curved then it represents the non-uniform acceleration. Now, give one example of motion where object does not change its speed. कोई ऐसी एग्जांपल बताओ जिसमें स्पीड नहीं चेंज होती बट डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली, जिसमें डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, वो कौन सी एग्जांपल होती है? हाँ जी, सर्कुलर मोशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? If the velocity is constant, no change in velocity, it means acceleration will be zero. If there is no change in velocity, it means the acceleration is zero. Now, in this diagram, you are seeing a watch. Now, these are the three hands: minute hand, hour hand, and second hand. When the minute hand or second hand moves, the tip of the minute hand it describes a circular path. It means ये जो hands हैं, मिनट सेकंड जो घड़ी की सुइयां हैं, जब ये रोटेट करती हैं then ये मोशन सर्कुलर है. It means it represents the accelerated motion. Okay, जो सर्कुलर मोशन है, मिनट हैंड की मोशन एक्सेलरेटेड, सेकंड हैंड की मोशन एक्सेलरेटेड, आवर हैंड की मोशन जो है वो भी जो है एक्सेलरेटेड मोशन ही होगी. नाउ इफ ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन इज डैश. कंप्लीट द स्टेटमेंट. इफ द बॉडी is moving with uniform velocity its acceleration will be zero, because velocity uniform it means no acceleration. Second, if the slope of distance time graph gives us, slope of distance time graph for uniform motion gives us speed, area under the velocity time graph for uniform motion gives us the idea for distance or displacement. I think कि आपको आज का जो टॉपिक है ग्राफ के बारे में वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 we will again solve different types of these such problems. Thank you.